An object is at a certain position and after some time it is changing its position. Then we say it is under motion. Change of position is motion. There may be a reason that it does not change its position because we are giving it forces from all the sides and it does not move at all. There is a force, because of that force the point starts motion. So we have to study so many things when a particle moves, when a body moves. All this knowledge of motion in physics is studied in the branch of physics which is known as mechanics. Mechanics. What is mechanics? Knowledge of motion. Okay. Now this knowledge of motion we have divided into three parts. Number one is statics. There may be certain reasons that a particle do not move and its motion, its velocity, its speed is zero. You see, zero speed is a speed. And there may be certain reasons why a body is not moving, and when we are studying that knowledge, that is known as statics. So which are the conditions which allow it or which do not allow it to move? Then it will be in static condition. That is the study we make in statics. Second part we study in mechanics is kinematics. This is branch of knowledge in which we study about the motion and the different quantities related to motion. Like initial velocity, after some times velocity has increased and we say there is an acceleration. That is why the velocity has increased. So initial velocity, acceleration, final velocity, it has taken certain time, it has passed through certain distance. All these quantities, how they are related, and when we throw it, then it moves in a projectile motion. All these phenomena of motion are studied in kinematics, except one thing, that what is the cause of giving the motion. मोशन किसके कारण से होता है उसको हम इसमें नहीं पढ़ते. हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं कि मोशन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है. फिर से कौन कौन से आप सबने पहले पढ़े हुए हैं? वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, acceleration. How they are related to each other in different type of motion. Straight line motion, projectile motion and zigzag motion, whatever type of motion, but relation of only these four quantities. Why the motion start? Why there is an acceleration? Who starts the motion? Who stops the motion? That is not studied in kinematics. That we study in a different branch known as dynamics. Okay, study of relations between velocity, time, distance, acceleration, directions. Then dynamics. This is dynamics, which gives us the knowledge of cause. तो इसके लिए आपको cause याद रखना है, इसके लिए क्या याद रखना है? Relations.
between these. Or statics, study the conditions when a body is not moving. So these are the three branches in which we will study, and all this is related to motion. मोशन नहीं होता है, मोशन होता है, मोशन क्यों होता है, ये. And this is known as mechanics. Mechanics is one branch of physics. Now we come to motion. What is motion? एक ऑब्जेक्ट की ये एक पोजीशन है और अपनी पोजीशन को वो शिफ्ट कर लेता है यहाँ पर. ड्यू टू एनी रीजन वी आर लीस्ट बॉदर्ड. अगर इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ हो गई तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजीशन इज मोशन. Process of changing position is motion. Okay. Now we have to study what is rest and motion. रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है. So in fact, in our nature, there is no particle, there is no body which is at rest. This is the fact. हम ये सोचते हैं कि हम ग्राउंड में खड़े हैं, लेकिन हमको सबको मालूम है कि अर्थ घूम रही है. अगर अर्थ घूम रही है और हम यहाँ खड़े हैं तो हम भी अर्थ के साथ घूम रहे हैं. ओके. अगर हम ये सोचते हैं अर्थ अपनी जगह पे खड़ी है, वो भी गलत है, क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो अर्थ भी एट रेस्ट नहीं है, हम भी एट रेस्ट नहीं है. तो सन एट रेस्ट होगा जिसके चारों तरफ घूम रही है, तो आंसर है नो, सन इज ऑल्सो नॉट एट रेस्ट. सन भी मूव कर रहा है अपने पूरे फैमिली को लेके, अपने सारे प्लैनेट्स को लेके वो भी मूव करता है, और पूरी गैलेक्सी मूव कर रही है. तो फिर एट रेस्ट कौन है? आंसर है नोबडी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट एट रेस्ट नहीं है, तो फिर हम चीजों की कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर था और उसने मोशन स्टार्ट किया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई. इनिशियली वो कैसा था? एट रेस्ट. तो जब रेस्ट होता ही नहीं है तो हम वेलोसिटी जीरो कैसे मानेंगे और एट रेस्ट की सिचुएशन को सोचेंगे कैसे? तो उसके लिए हमने एक तरीका निकाला. एक तरीका ये निकाला कि कोई भी बॉडी अपने चारों तरफ उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में अपने डिस्टेंस को चेंज कर रही है या नहीं कर रही. जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, यहां से मेरा कुछ डिस्टेंस है, यहां से मेरा कुछ डिस्टेंस है. आपने 10 सेकंड बाद देखा ये डिस्टेंस उतना है, ये डिस्टेंस भी उतना ही है. फिर 10 सेकंड बाद देखा ये दोनों डिस्टेंस अभी भी सेम है. सो द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट इज नॉट चेंजिंग. इसको हम कहेंगे सराउंडिंग. क्या वर्ड यूज करना है? सराउंडिंग. सो माई पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग इज नॉट चेंजिंग. देन फॉर आवर प्रैक्टिकल पर्पस आई एम एट रेस्ट. तो फिजिक्स में हम लोग एट रेस्ट किस चीज को मानेंगे? जो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा. ये चीज समझ में आती है, उसको रेस्ट. अदरवाइज आप ये ऑब्जेक्शन हमेशा कर सकते हैं कि आप एट रेस्ट नहीं है, क्योंकि अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ तो घूम रही है. दैट इज ट्रू. लेकिन अपने सराउंडिंग के लिए मैं एट रेस्ट हूं. ये समझ आया? ठीक. तो एट रेस्ट होना या नहीं होना ये एक रिलेटिव टर्म है. रिलेटिव मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिलेशन में. फिर से इस बात को समझिए. एक कंपार्टमेंट है रेलवे का. उस कंपार्टमेंट में यहां दो लोग बैठे हैं और आमने सामने. ये आदमी क्या बताता है मुझे कि साहब इस आदमी को मैं देख रहा हूं 1 घंटे से, ये अपनी जगह पर ही बैठा है,
हिला नहीं है, ही इज एट रेस्ट, कोई मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, मैंने दूसरे आदमी को पूछा तुमने इसको देखा येलो को? बोला हाँ साहब देखा। क्या देखा? तो बोले साहब बड़ी तेजी से ऐसे जा रहा था। क्यों? ये तो बोलता है नहीं जा रहा था, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी मेरे को क्या बोलता है ये जा रहा था। क्यों? क्योंकि तीसरा आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ये आदमी कहाँ है? दोनों ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं, ट्रेन का डब्बा ऐसा जा रहा है। तो इसने पीले वाले को देखा, ये क्या बोलेगा? चल रहा है। ये क्या बोलेगा? नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि इससे इसका डिस्टेंस बदल रहा है क्या? अभी भी उतना ही है, अभी भी उतना ही है, अभी भी उतना है, अभी उतना है। तो वो क्या बोलेगा? ये मेरे से 4 फुट सामने बैठा है और अभी तक वहीं का वहीं बैठा है, उठ के बाथरूम भी नहीं गया है, इधर भी नहीं गया है, उधर भी नहीं गया है। तो उसका जो सराउंडिंग है, डब्बे की छत है, डब्बे का फ्लोर है, डब्बे की दीवार है, ये उसका सराउंडिंग बनता है। इन सारे पॉइंट से उसका डिस्टेंस सेम रहता है। इसलिए अंदर वाले लोग क्या बोलेंगे कि वो कैसा है? एट रेस्ट। लेकिन प्लेटफॉर्म पे जिसने उसको देखा वो क्या बोलेगा? अरे मैंने अभी उसको देखा, ट्रेन चल पड़ी, वो आगे चला गया, वो मोशन में था। तो वो आदमी एट रेस्ट था, ये एट मोशन था। तो हम बोलेंगे फर्स्ट आदमी के रिलेशन में एट रेस्ट था, थर्ड आदमी के रिलेशन में मोशन में था। तो रेस्ट या मोशन एक रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव मतलब एक के रिलेशन में उसका मीनिंग दूसरा होगा, दूसरे के रिलेशन में अलग मीनिंग होगा। जैसे रिलेशन की बात हम कर सकते हैं कि मैं फादर हूं कि सन हूं। हाँ बिल्कुल ठीक, एक के रिलेशन में फादर और दूसरे के रिलेशन में सन। तो ये चीजें रिलेटिव होती हैं, उसी तरह से मोशन भी रिलेटिव होता है। ओके, अब इसके बाद अगली चीज हम ये देखते हैं कि रेस्ट एंड मोशन, इसको एक एक लाइन डेफिनेशन की लिख लेते हैं। When it is not changing its position with respect to surrounding। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? मोशन। When it is changing its distances with respect to surrounding। Okay। ये बॉडी पहले यहां पर थी, ये पोजीशन 1, ये इसके डिस्टेंसेस थे 1 1 1 1। जब ये यहां चली गई तो ये इसके डिस्टेंसेस हो गए, ये डिस्टेंस हो गया 2, ये डिस्टेंस हो गया 2, ये डिस्टेंस हो गया 2, ये डिस्टेंस हो गया 2। अब हम ये देखते हैं कि पहले जो इसके डिस्टेंस थे CDEF से वो यहां पर पहुंचती है तो ये डिस्टेंस इसके चेंज हो गए। तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस पार्टिकल इज इन मोशन। हमारी फिजिक्स के लिए ये मोशन में अभी है और पहले नहीं था, जब इसके पार्टिकल चेंज नहीं हो, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहे थे। ओके, अब इसके बाद अगली चीज हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मोशन को। दैट इज 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। तो डायमेंशन को समझिए,
डायमेंशन डायरेक्शन। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है उसे हम कहेंगे वन डायमेंशन मोशन। इसी का दूसरा नाम रेक्टिलिनियर मोशन। वन डायमेंशन इसको क्यों बोलते हैं? हमारे ग्राफ में कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। इधर से इधर जाएंगे, ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे एक्स डायरेक्शन। हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट टॉप डाउन ये नाम नहीं रखे, क्या नाम रखे? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड, ऐसे करके हमने 6 दिशाओं के नाम रखे हैं। दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक पार्टिकल एक डायरेक्शन में चलता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ ये फैसिलिटी है कि हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसा मान सकते हैं और हम चाहे तो ऐसा मान सकते हैं, हम चाहे तो उसको ऐसा मान सकते हैं। कंपल्सरी कंडीशन क्या है? ऑल 3 विल बी एट राइट एंगल टू ईच अदर। पर किसी एक को भी आप ऐसे घुमा सकते हैं। घुमाएंगे तो तीनों घूमेंगे, एक नहीं तीनों। आप किसी एक को ऐसा घुमाइए, बाकी 2 साथ में घूम जाएंगे। कंपल्सरी कंडीशन क्या है? 90 90 90। ओके, हमारा पार्टिकल पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जा रहा है, उस डायरेक्शन में हमने एक्स एक्सिस बना दी। ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन थोड़ी देर के बाद पोजीशन 2 है, तो हमने ये बना दी एक्स एक्सिस और ये बना दी वाई एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर ऐसा अंदर की तरफ जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे पे राइट एंगल। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? हाइट कितनी है? 0। यहां पर है, अब हाइट कितनी है? 0। यहां पर है, अभी हाइट 0, हाइट 0, हाइट 0। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या? नहीं। वैसे ही क्या ये अंदर की तरफ या बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है? नहीं आ रहा, तो जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं हो रहा। थर्ड, क्या एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? आंसर है यस। ये यहां पर x इज इक्वल टू -2 था, फिर -1 हो गया, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू so x coordinate is changing. So out of x, y and z 3 coordinates, कौन सा कोऑर्डिनेट उसका चेंज हो रहा है? कितने चेंज हो रहे हैं? एक, दोनों कि तीनों? अभी आपको मैंने बताया y ऊपर और नीचे नहीं जाता है तो y चेंज नहीं हो रहा, z भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन x चेंज हो रहा है। तो 3 में से कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? 1, बाकी दोनों नहीं हो रहे। ये बात समझ में आई? सिर्फ x में चेंजेस आ रहे हैं, y में चेंजेस नहीं आ रहे, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, अंदर और बाहर भी नहीं जा रहा, z में भी चेंजेस नहीं आ रहे। तो कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? कितने टाइप के? 1 टाइप के। जब 1 टाइप के कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं उसको हम कहते हैं एक डायमेंशन चेंज हो रही है। कौन सी डायमेंशन? एक्स डायमेंशन। तो ये पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायमेंशन चेंज हो रही है, 1 डायमेंशन चेंज हो रही है। तो इस मोशन को हम कहेंगे 1D मोशन, 1 डायमेंशन मोशन, राइट? सो दिस इज 1 डायमेंशन मोशन। मान लीजिए ये पार्टिकल इधर जाता है या इधर जाता है, उस समय ये यहां नहीं जा रहा है, यहां भी नहीं जा रहा है, तो अब भी वो कितने में ट्रेवल करता है? 1 डायमेंशन में। दैट इज ऑल्सो 1 डायमेंशन मोशन। अब वो जिधर भी जाता है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में जाता है तो वो 1 डायमेंशन मोशन है। एक थंब रूल हमने याद कर लिया, इफ इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन देन दैट इज ए 1 डायमेंशन मोशन। ठीक? सो ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज
only one coordinate is changing. ठीक है, ओके। अब उसके बाद दूसरा हम लेते हैं टू डायमेंशन मोशन। ये है रेक्टिलिनियर मोशन इन ए लाइन। Example, a train, an engine moving on a straight railway track. A ball which is just thrown on the ground and it moves on a straight line. ये सारे मोशन क्या है? One dimension, straight line or linear motion. Then is two dimension motion. टू डायमेंशन और 2D मोशन। ओके, 2D मोशन देखिए, एक पार्टिकल यहां पर था, आफ्टर सम टाइम इट हैज कम हियर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, वाई कोऑर्डिनेट पहले 0 था वो भी चेंज हो गया, उसके बाद ये यहां पहुंच गया, एक्स कोऑर्डिनेट फिर से चेंज हो गया, ये इतना हो गया, और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया, फिर ये यहां पहुंच गया, x कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया। तो ये इस तरफ बढ़ रहा है और ये इस तरफ भी बढ़ रहा है। पहले यहां था, फिर उसकी हाइट यहां हो गई, फिर उसकी हाइट यहां हो गई, फिर उसकी हाइट यहां हो गई। देखिए ऊपर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। कितनी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये? 2 डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन का नाम x, दूसरे का y। ऐसा अगर एक बॉडी ऐसे जा रही है ये, तो ये x की तरफ भी जा रही है और z की तरफ भी जा रही है। इस तरह से कोई पार्टिकल या कोई बॉडी ऐसे चले कि वो एक साथ 2 डायरेक्शन में मूव कर रही हो, 2 डायरेक्शन में उसके डिस्टेंसेस चेंज हो रहे हो, तब ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल क्या है? हमने एक बॉल को ऐसे थ्रो किया, वो बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है क्योंकि वो इधर से इधर जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है क्योंकि पहले इस लेवल पर था, ये ऐसा ऊपर चला गया, वाई बदल गया और फिर वाई कम हो गया, तो x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है, दोनों बदल रहे हैं, इसलिए ये मोशन क्या होगा? 2D मोशन। अब एक छोटी सी चीज और, 2D मोशन क्या एक लाइन में समा सकता है? नहीं, अदरवाइज वो लीनियर मोशन हो जाएगा। फिर से 2D मोशन को गहराई चाहिए क्या? z नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और यहां से मूव करेगा ऐसा, तो उसको ये प्लेन चाहिए। प्लेन में कभी वो इधर चला जाएगा, कभी वो इधर चला जाएगा और ऐसा चलता जाएगा, तो ये मोशन एक लाइन में भी नहीं चलेगा, लीनियर मोशन नहीं है। इसको पीछे उड़ने की जगह भी नहीं चाहिए, न सामने निकलने की जगह चाहिए, इसको सिर्फ क्या चाहिए? एक प्लेन जिसमें ये ऐसा अपना मोशन दिखा सकता है, तो इसको हम कहते हैं मोशन इन ए प्लेन। ये मोशन किस में था? लाइन में। ये मोशन किस में होता है? प्लेन में। और ये क्या होगा? 2 डायमेंशन when 2 coordinates are changing simultaneously. ठीक है, when 2 dimensions are changing simultaneously, then it is a 2-dimension motion and it is known as a motion in a plane. Okay, अब हम तीसरा लेते हैं, that is
थ्री डायमेंशनल मोशन, 3D। अब अभी तक की डेफिनेशन से आपको पता लग गया होगा 3D मोशन में क्या क्या चेंज होना चाहिए। x की तरफ भी उसको जाना चाहिए, y की तरफ भी जाना चाहिए और z की तरफ भी जाना चाहिए। ये कैसे होगा? तो आंसर है, हमने एक एरोप्लेन उड़ाया, एक चिड़िया को उड़ाया, वो ऐसे उड़ के चली गई, तो इधर से इस तरफ गई कि नहीं? x की डायरेक्शन में गई। ऊपर गई कि नहीं? ऊपर भी गई y, और ऐसे बाहर की तरफ भी चली गई, तो उसने z में भी मूवमेंट किया। तो उसके मोशन, उसके मूवमेंट कितनी डायमेंशंस में हो गए? x में भी हो गया, y में भी हो गया और z में भी हो गया। ऐसे वाले मोशन को क्या कहेंगे? 3 डायमेंशन मोशन। अब इस 3 डायमेंशन मोशन को क्या वो बर्ड, क्या वो चिड़िया एक लाइन में कर सकती थी? नहीं। क्या वो एक प्लेन में कर सकती थी? उसको ऐसे उड़ के बाहर भी जाना है तो उसमें भी नहीं कर सकती। उसको क्या चाहिए? तो आंसर है, उसको पूरा स्पेस चाहिए। तो ये वाला कहलाता है मोशन इन ए स्पेस। तो 3D मोशन when all 3 coordinates are changing. और इसको क्या बोलेंगे? मोशन इन स्पेस। ये मोशन इन स्पेस। Okay, so 1 dimension motion, 2 dimension motion and 3 dimension motion. 1 dimension motion में only one coordinate, मान लीजिए only x is changing. In 2 dimension, x and y both coordinates are changing. In 3 dimension, x, y and z, all the 3 coordinates are changing. For 3 dimensions we need space, for 2 dimensions we need a plane, for 1 dimension we need a line. ठीक है? So that is dimensions of emotion. ओके, अब थोड़े से नॉमेनक्लेचर और समझिए किस किस तरह के होते हैं। एक और तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया। उस क्लासिफिकेशन में हमने इसको बनाया कि मोशन एक लाइन में हो सकता है, एक सर्कल में हो सकता है और एक ऑसिलेशन में हो सकता है, आगे पीछे आगे पीछे। दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। उस क्लासिफिकेशन को देखिए वो कैसा होता है। वो तो डायमेंशन वाला था, और ये क्लासिफिकेशन के लिए हम पहले लिखते हैं लीनियर, दैट इज रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी। सर्कुलर, रोटेशनल। लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए लाइन। ओके, तो जब वो लाइन में मूव करेगी तो क्या ये दोनों वर्ड्स में कुछ डिफरेंस है और बोथ आर गिविंग ओनली सेम टाइप ऑफ मोशन? आंसर, देयर इज ए डिफरेंट ऑफ द यूज। दोनों को हम अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। इसको समझिए कैसे अलग अलग करेंगे। जब हमारा मूव करने वाला ऑब्जेक्ट एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट, और उसका अपना साइज इतना छोटा है कि वो जिस रास्ते को तय कर रहा है, जिस डिस्टेंस को मूव कर रहा है, दैट डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एंड साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, लाइक ए पॉइंट, देन इट्स मोशन विल बी नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर में व्हाट इज मूविंग? पॉइंट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ये होता है रेक्टिलिनियर। तो फिर ट्रांसलेटरी क्या होता है? ट्रांसलेशन मीन्स changing position from one location to the other location, that is translation. ये शब्द हम कहाँ यूज करेंगे? When our object is not a point size
एंड इट इज बिग साइज। जैसे एक टेबल वहां से लेके हम यहां तक लेकर आए, इतना सा डिस्टेंस लाए और टेबल का साइज इतना बड़ा है, तो ये हम रेक्टिलिनियर मोशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन किस में होता है? उसके लिए ये जो कोई भी बॉडी होती है, ये बॉडी एक्चुअल क्या होती है? दिस बॉडी इज ए ग्रुप ऑफ मेनी पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल को मिला के हमने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। तो थोड़ा सा रिजिड बॉडी मैं यहां डिस्कस कर दूं। ये एक रिजिड बॉडी है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4, ये सब का आपस का जो डिस्टेंस है कुछ है। अभी वो डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इस बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, पर ये जो फैमिली है इन सब का आपस का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो मैं क्या बोलूंगा? ये एक रिजिड बॉडी है। क्या ये भी इस बॉडी का टुकड़ा है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल का इसके पार्टिकल से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, पर इसके पार्टिकल का आपस में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसके सारे पार्टिकल एक बॉडी बनाते हैं। तो हम एक रिजिड बॉडी किसको बोलेंगे? which has got more than one particles, but the distance between all the particles are same. जब हम इसको ऐसे चला रहे हैं और इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो पार्टिकल ए की स्पीड भी 2 है, पार्टिकल बी की भी 2 है, पार्टिकल सी की भी 2 है, लेकिन ये ऐसे चल रहा है, इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसके सब पार्टिकल की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, पर इसके सब की 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये एक अलग बॉडी है और ये एक अलग बॉडी। तो एक बॉडी हम किसको कहेंगे? विच इज मोर देन वन पार्टिकल, बट ऑल द पार्टिकल्स आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस एंड दे डू नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। व्हेनेवर देयर इज ए मोशन, ऑल ऑफ देम मूव विद ए सिमिलर स्पीड एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये एक बॉडी है, ये इसकी टाइम t1 पर पोजीशन है और टाइम t2 पर इसकी पोजीशन देखिए, ये यहां से चला 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो हमने देखा ये ऐसे 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 और ये यहां पर ऐसा। फिर से ये वाला जो डायग्राम था वैसा का वैसा ही रहा हमारा जो यहां था। ये बॉडी यहां पर इस तरह की थी, और अभी भी इसी तरह की है। हर पॉइंट ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, हर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम है और सब कैसे गए हैं? पैरेलल। ये वाला जो मोशन होता है, दिस मोशन इज नोन एज ट्रांसलेटरी। तो ट्रांसलेटरी हम किसके रेफरेंस में यूज करते हैं? इसको हम एक रिजिड बॉडी के रेफरेंस में यूज करते हैं। और लीनियर किसके रेफरेंस में यूज करेंगे? पॉइंट। ठीक है। तो दैट इज लीनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। यही डिफरेंस होता है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में। व्हेन देयर इज ए सिंगल पॉइंट एंड इट मूव्स इन ए सर्कल, in such a way that it keeps a equal distance from one point at all the times. कहीं भी चला जाएगा, इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा कितना है? r। तो ये वाला मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर ये एक सिंगल पॉइंट की बजाय एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। बॉडी क्यों है?
क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पार्टिकल है, ठीक है, और उनके बीच में डिस्टेंस है. सो दिस इज ए बॉडी एंड इट मूव्स लाइक दिस. ये इसका ये पॉइंट सर्कल में घूम रहा है, ये पॉइंट सर्कल में घूम रहा है. इस सर्कल का रेडियस इतना बड़ा है, लेकिन इसका रेडियस इतना बड़ा है, और दोनों एक साथ घूम रहे हैं. ये वाला मोशन जो है इसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन. तो सर्कुलर मोशन वर्ड किसके लिए यूज करना है? सिंगल पॉइंट के लिए. रोटेशनल मोशन किसके लिए यूज करना है? एक रिजिड बॉडी के लिए. और उस रिजिड बॉडी का हर पॉइंट एक सर्कुलर मोशन करता है, और उस सर्कुलर मोशन की एंगुलर स्पीड एक जैसी रहती है. जैसे ये पंखा, फैन को देखिए, फैन के आखिरी वाला एंड और बीच वाला एंड, ये जब घूम रहे हैं, ये ऐसे एक चक्कर लगाया. जब ये वाला पॉइंट पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो ये बीच वाला पॉइंट भी कितना लगाएगा? एक चक्कर लगाएगा. वो दो नहीं लगाएगा, नजदीक है सेंटर के, पर ये एक चक्कर तो ये भी एक चक्कर. ये जितनी देर में 360 डिग्री घूमेगा उतनी देर में ये भी 360, उतनी देर में ये भी 360. तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी है? सेम. ठीक है. तो इस तरह से एक ऐसी बॉडी जिसमें एक से ज्यादा पॉइंट होंगे घूम रही है एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ, इन सच ए वे दैट ऑल द पॉइंट्स आर हैविंग सेम एंगुलर वेलोसिटी, देन दैट मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन. तो इसको नोट कर लेते हैं. रोटेशनल मोशन a rigid body rotate about a straight line, और इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे? एक्सिस. ओके, दिस इज रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन किसके लिए होता है? रिजिड बॉडी. और सर्कुलर मोशन किसके लिए होता है? A point moves in such a way that it is always at a fixed distance from a given point, and that point is known as center. Then it is a circular motion. Circular motion, rotational motion, linear motion, translational motion. वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं. Point and body, point and body. Okay. Now we take the third one, that is oscillatory motion. Oscillatory motion is such a motion when a particle moves to and fro about a mean position. There is a particle which moves in one direction, comes back, go to the other direction, again comes back, go to this direction, comes back. ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? To and fro. Fro means from. जैसे from this point to that point, from that point to this point, to from. That is to fro motion. So जिस पॉइंट के दोनों तरफ ये चलता है उसके लिए वर्ड यूज करना है about. So this is a motion about this point. This is the mean position. So when a particle is making to and fro motion about a mean position, then
its motion is oscillatory force. Right? So this is oscillatory motion. इस तरह से ये तीन तरह के मोशन हैं और ये तीनों मोशन हमने क्लास 11 में स्टडी करने. ओके